السلام علیکم، بال نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ میں ہوں سید رضی اور میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن میں آج آپ کو بتائیں گے امت مسلمہ غصے میں، 4 جوان مٹی پر قربان، احسن کا الزام، حافظ وہاب آمنے سامنے، 20 لاکھ کے جانور ہلاک، اور ڈزنی برائے فروخت۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا عید کے فوری بعد آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ آرઓز اور ڈی آرઓز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے عقیل احمد سے۔ عقیل، کیا تفصیلات ہیں؟ عقیل احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا عید کے فوری بعد آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ آرઓز اور ڈی آرઓز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا 8 جولائی سے آرઓز اور ڈی آرઓز کی ٹریننگ شروع کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین، سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سعودی عرب، ترکی سمیت دیگر ممالک نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو قابل مذمت فعل قرار دے دیا۔ مراکش نے سفیر واپس بلا لیا۔ متحدہ عرب امارات اور عراق نے سفیر کو طلب کر کے شیطانی فعل پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایران، عراق سمیت کئی ممالک میں سویڈن کے سفارت خانے پر احتجاج کیا گیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سویڈش ملعون کے شیطانی فعل کے خلاف مسلم امہ یک زبان۔ مختلف ممالک میں مسلمان سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹویٹر پر بھی بائیکاٹ سویڈش برانڈز ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ مراکش نے سویڈن سے احتجاجاً سفیر واپس بلا لیا۔ متحدہ عرب امارات اور عراق نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترک صدر اردوان نے کہا، مغرب کو سکھائیں گے قرآن پاک کی توہین اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ فلسطین نے واقعے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ قطر نے خبردار کیا، قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی کی اجازت دینا نفرت اور تشدد کو ہوا دیتا ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے کہا، قرآن پاک کی بے حرمتی خطرناک اور اشتعال انگیزی ہے۔ مصر نے بھی واقعے کو شرمناک قرار دے دیا۔ بغداد میں مظاہرین سویڈن کے سفارت خانے میں داخل ہو گئے۔ تہران میں بھی سویڈن ایمبیسی کے باہر ہزاروں افراد نے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ یورپی یونین نے قرآن کریم کی بے حرمتی کو جارحانہ عمل قرار دے دیا۔ جاری بیان میں کہا گیا، قرآن مجید یا دوسری مقدس کتاب کی توہین اشتعال انگیزی ہے۔ یہ عمل یورپی یونین کے موقف کی عکاسی نہیں کرتا۔ مسلم دنیا کے جذبات قرآن پاک کے بے حرمتی سے مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستانی عوام سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے افسوسناک اور شرمناک واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے عالمی پارلیمانوں سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ بہت جلد اس سلسلے میں دنیا بھر کی پارلیمانوں کو خط لکھیں گے۔ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے عالمی پارلیمانوں کو اجلاس بھی بلائیں گے۔ پاکستان نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو آزادی اظہار اور احتجاج کے بہانے تشدد پر اکسانے والے عمل کو کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سویڈن میں قرآن سوزی کے حالیہ واقعے کے بعد یورپ بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ۔ سویڈن کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی سخت الفاظ میں مذمت۔ OIC نے بھی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سویڈن سے زبیر حسین سے۔ جی زبیر۔ دارالحکومت اسٹاکہولم میں قرآن سوزی کے حالیہ واقعے کے بعد یورپ بھر میں مقیم مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یورپ میں مقیم مسلم کمیونٹی نے پرامن احتجاج منعقد کیے، جبکہ سویڈن میں ایک منفرد قسم کا احتجاج منعقد کیا گیا، جہاں پر مسلم کمیونٹی نے شاہی محل اور سویڈش پارلیمنٹ کے باہر جمعے کے روز باجماعت نماز ادا کی اور قرآن شریف کا سویڈی زبان میں ترجمہ مقامی سویڈش کمیونٹی میں تقسیم کیا۔ سویڈن کی مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے بھی اس مکروہ عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टसन का कहना है कि ये कुरान शरीफ को जलाने का जो वाक़या है वो कि गैर कानूनी नहीं लेकिन ये एक नामुनासिब अमल है। यूरोपीय यूनियन ने भी इस मकरूह अमल का शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ये कहा कि स्वीडन भर से लेके यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो यूरोपीय यूनियन उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती है। जबकि आज OIC ने भी जो है वो पाकिस्तानी वक्त 3 बजे के करीब एक अहम इजलास तलब किया है जिसमें मुस्लिम सरबराहान जो है वो इस मामले के ऊपर नज़रसानी करेंगे और इसको देखेंगे कि आया दुनिया में इस्लामोफोबिया का खात्मा है। कुरान सोजी के वाक़े पर जहां मुल्क भर में एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज जारी है, वहीं स्वीडन में भी एहतजाज किया जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वाक़े पर मज़म्मत का भी इजहार किया गया है। उलमाए कराम और मजहबी स्कॉलर्स ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत की है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा रागिब नईमी और जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी ने इजहार राय के नाम पर शैतानी फेल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में उलमाए कराम ने मकरूह फेल की रोकथाम के लिए उम्मत मुस्लिमा से किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया। दिलसोज वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं, ये सब इजहार राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये एक दीदा दानिस्ता कोशिश है ताकि इस तरह के सानेहात से मुसलमानों के दीनी जज्बात को मजरूह किया जाए और वो रद्द अमल में आकर अपने जज्बात का इजहार करें और फिर दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। ये वाक़यात जो है ये तो उम्मत मुसलमान की दीनी गैरत का इम्तहान होता है। वो टेस्ट करते रहते हैं लगा के कि इनमें जान है कि नहीं, अभी ये जिंदा है कि मर गए हैं। बाकी जहाँ तक OIC का इजलास है, इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये तो वो जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और उसके बाद कहेंगे OIC, ये तो इतना ही है OIC का मतलब। अगर ये सारे मुत्तफिका फैसला करें कि जो कोई आइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान पाक की इस तरह की बेहुरमती करेगा तो हम उसका जो है वो उसकी मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। सारे के सारे वाक़यात कोई अच्छी कंट्री सकीम के तहत हो रहे हैं और जिसके नतीजे में वो बार बार मुसलमानों को बरांगेज कर रहे हैं और मुसलमानों को वो उभार रहे हैं इस बारे में कि वो यूरोपीय अक़वाम से बाइकाट का ऐलान करें, यूरोपीय अक़वाम से अपनी दुश्मनी का ऐलान करें। इस मसले में हमें ये देखना है कि किस तरीके से ममालिक आपस में बकाए बांधने के उसूल के ऊपर जिंदगी गुजारने के बुनियादी कानूनों को लेकर चल सके। हम पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा। बिलावल भुट्टो का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन बढ़े, हमारे को रोजगार की ज़रूरत है। मज़ीद कहा, हमें अपने नौजवानों की स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुले। जापान का पहला दौरा है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा खारिजा पॉलिसी पर तवज्जो दी है। हम पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा का ये कहना है। उनका कहना है कि जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन बढ़े और हमारे नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है। मज़ीद कहा, हमें अपने नौजवानों की स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुले। कि बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में 4 एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वजिंजो ने चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम दुश्मनों का पीठ पीछे से फार, शहीद हुए 3 पुलिस और 1 FC एहलकार। हुक्काम के मुताबिक हमला बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी के इलाके दानासर की चेक पोस्ट पर किया गया। शहीद एहलकारों में सब इंस्पेक्टर बहादुर खान बाबर, अफजल शेरानी और बास खान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पजंजो ने चेक पोस्ट पर हमले की मसम्मत की है। कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशाल राह हैं। फोर्सेस पुख्ता अज़्म हौसले के साथ मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का शेरानी में चेक पोस्ट पर हमले में इजहार मजम्मत, सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। शर्जील मेमन ने शहीद एहलकारों के खानदानों से इजहार ताज़ियत, कहा कि एहलकारों के अहलखाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे जवान बुलंद हौसलों के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मुल्क और कौम की सलामती के लिए कुर्बानियाँ पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। मुल्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलअदम टीटीपी का अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम से बारूदी मवाद, कौन और नकदी बरामद हुए। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इक़दामात लागू कर दिए। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपये का इजाफा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपये लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 415 अरब रुपए के मजीद टैक्स। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपए का इजाफा। बड़े शोबों पर इजाफी सुपर टैक्स। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात मान लिए। वफाकी बजट में उठाए गए इक़दामात लागू कर दिए गए। बच्चों के 500 रुपए तक के 200 ग्राम दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों सप्लाई पर सेल्स टैक्स 3 के बजाय 4% हो गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 50 के बजाय 55 रुपए की जाएगी। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। 40 से 50 करोड़ सालाना पर 8%, 35 से 40 करोड़ 4 से 6%, 30 से 35 करोड़ 4%, 25 से 30 करोड़ 3%, 20 से 25 करोड़ 4%, 25 से 30 करोड़ में 3%, 20 से 25 करोड़ 9%, 15 से 20 करोड़ आमदन पर 1% टैक्स लग गया। बैंकिंग कंपनियों की 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। 2000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। IMF मुआहदा रोकने की मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब हो गए। एहसन इकबाल के इल्जामात। कहते हैं IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा, मईशत बेहतर होगी। हमें एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाकर इसमें इजाफा करना है। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा। कौम कभी नहीं भूलेगी कि इस मुआहदे को नाकाम करने के लिए PTI के ओवरसीज चैप्टर्स के जरिए पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। मनफी कोशिशों और साजिशों को अल्लाह ताला ने नाकाम किया और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। अलबत्ता इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कितनी तेजी के साथ उसमें इजाफा करते हैं। हमें अब एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाकर पूरे अपने तमाम वसाइल मुल्क की बरामदात को बढ़ाने में झोंकना है। की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। हम चाहते हैं पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन बढ़े। बिलावल भुट्टो का इस मौके पर क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पहला दौरा है जापान का और खुशकिस्मती ये है कि पहला दौरा भी है, जिंदगी का पहला दौरा है, बहसीत आपका वजीर खारजा भी पहले दौरा है। ये हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का एक कोशिश रहा है कि हम अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे जोर दें और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बुनियादी फलसफा रहा है जहाँ तक हमारा खारजा पॉलिसी
वो ट्रेड ओवर एड का जो फलसफा है उस पर हम फोकस करते आ रहे हैं, और इस ट्रिप का मकसद भी यही कि हम किस तरीके से आपके लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और जापान के अवाम के लिए एक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके, हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस में इजाफा करके कैसे एक दूसरे के अवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते। तो हमारा 3 मेन एरियाज हैं जो हम जगह जगह पाकिस्तान की तरफ से जिस पर हम जोर देते हैं। एक जो हमारा ज़राअत है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है, ख़ास तौर आजकल हमारा आम का सीज़न है, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के आम मेरा ख्याल में उगाना चाहिए, तो ये हमारा एक खसूसी फोकस हो रहा है। और यहाँ वैसे जापान में भी स्ट्रोक है, तो बट ओवरऑल एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर खास तौर पे इस जैसे मुल्क जैसे जापान में जहाँ उनके पास उतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उनका मेरा ख्याल में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकता है कि पाकिस्तान का और जापान का एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा कोऑपरेशन का इजाफा हो, हमारा एक्सपोर्ट्स का इजाफा हो, चाहे हमारा मीट हो, हमारा ये सब्जियां हो, फल हो, जो भी, तो वो एक पॉजिटिव वो एक ओवरऑल फोकस एरिया होता है, लेकिन हमारे जापान में इसका फोकस होना चाहिए। दूसरा, जापान तो दुनिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें एक लीडर है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में बहुत ही पोटेंशियल है और अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो ये एक दूसरा सेक्टर है जिसमें मेरा ख्याल में अगर हमारा दोनों ममालिक के दरमियान हम इस सेक्टर में भी ताल्लुकात का और इंगेजमेंट का इजाफा हो तो एक दूसरे के फायदा हो सकता है। मगर जो तीसरा सेक्टर जिस पे हम खास तौर पे जोर दे रहे हैं, हमारा एम्बेसडर साहब को बार बार तंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में हम इस स्पेस पे फोकस करना चाहते हैं। अब वो ये है कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है, ख़ास तौर हमारा यूथ का एक यूथ बल्ज है, 65% हमारा जो पॉपुलेशन है यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको रोज़गार की ज़रूरत है। और हमारा रीजन में और ओनली हमारा रीजन दुनिया भर में उनका एजिंग पॉपुलेशन है। तो हम समझते हैं उन ममालिक जहाँ एजिंग पॉपुलेशन है उनके साथ पाकिस्तान का जहाँ हमारा यूथ का पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, उनके दरमियान बेहतर ताल्लुकात की ज़रूरत है। अब खबर शामिल करते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई और सुथराई के निज़ाम में रुकावटें डाली गई। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने अपनी मदद आप के तहत शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की लफ्जी गोलाबारी। बोले मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के अलावा अपनी पार्टी के चेयरमैन को भी चार्ज मुंतकिल नहीं किया। हम तनकीद का जवाब काम करके देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक भी टाउन चेयरमैन नहीं, लेकिन हम वहाँ मौजूद रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कहा हम सब ईद नहीं मना पाए, लोगों को मनाने पर लगे हुए थे। हाफिज नईम से मेरे लाख इख्तलाफ हैं, लेकिन मेरे भाई हैं। हमारे इन टाउन्स ने और हमारी यूसीज ने और हमारे काउंसलर जिनको अभी तक चार्ज भी नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने दीवानावार काम किया और बड़ी हद तक इंतजामिया को मजबूर किया कि यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत बेहतर हो। मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, ड्यूटी चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। काम होता हुआ नजर आ रहा है। अपने हक और इख्तियार के लिए हमारा हक नहीं है, कराची के अवाम का हक है। कराची के लोगों ने तो जमात इस्लामी को, इसलिए हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी का ये फ़र्ज़ है कि वो एक मस्बत अपोजिशन करेगी, अवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी। नॉर्थ नागाबाद के आतिफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। मैं मोमनाबाद का और PTI के जो अवान साहब चेयरमैन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ इस रवादारी को फ़रोग़ दें, जो होना था हो गया। शेरवानी 4 साल बाद आई, जब तक पैंट शर्ट पर गुजारा की। 19 जून को हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं,
اور مختلف جگہوں پر مختلف رویے سامنے آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی منتقل نہیں کرنا چاہتے, اور یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کیا جائے, اور اس چارٹر آف کراچی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ تمام سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود کام کریں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں مبینہ بے ضابطگیاں. بورڈ کے انکار پر حکومت نے کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی دور کا تمام ریکارڈ دوبارہ مانگ لیا. مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں مبینہ بے ضابطگیاں, پی سی بی ریکارڈ کی فراہمی سے گریزاں. وزارت بین الصوبائی رابطہ نے کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی دور کا تمام ریکارڈ دوبارہ مانگ لیا. نجم سٹی دور میں بھرتیوں کا تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت. پی سی بی چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو لکھے گئے خط میں مینجمنٹ کمیٹی ارکان پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں. وزارت بین الصوبائی رابطہ نے ہدایت کی ہے کہ کوچز, کانٹریکٹ اور مستقل بنیادوں پر رکھے گئے افراد کا ڈیٹا, معاہدوں کی تفصیلات اور اخراجات کا تمام ریکارڈ 4 جولائی تک فراہم کیا جائے. بتایا جائے مینجمنٹ کمیٹی کے دور میں کوچز اور آفیشلز کے خلاف کتنی انکوائریاں ختم کی گئیں. یاد دہانی خط کی کاپی وزیر اعظم آفس کو بھی ارسال کی گئی ہے. مینجمنٹ کمیٹی کے غیر ضروری اخراجات سے متعلق شکایات پر بھی وفاقی حکومت نے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے. اہم خبر دیں آپ کو, قرآن پاک کی بے حرمتی. او آئی سی کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا. ہنگامی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہو رہا ہے. اجلاس کی صدارت سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کر رہے ہیں. ہنگامی اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین شریک ہیں. پاکستان کے او آئی سی میں سفیر فواد شریک ہیں. اجلاس کے ایجنڈے میں اسلاموفوبیا کی روک تھام سمیت دیگر امور پر گفتگو کی جا رہی ہے. قرآن پاک کی بے حرمتی. او آئی سی کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے. ہنگامی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر جدہ میں منعقد کیا جا رہا ہے. اجلاس کی صدارت سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کر رہے ہیں. ہنگامی اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین شریک ہیں. پاکستان کے او آئی سی میں سفیر فواد شیر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اجلاس کے ایجنڈے میں اسلاموفوبیا کی روک تھام سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. او آئی سی کی جانب سے آج ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا. قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے ہنگامی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر جدہ میں اس وقت جاری ہے. اجلاس کی صدارت سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کر رہے ہیں. ہنگامی اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران بھی شریک ہیں, جبکہ پاکستان کے او آئی سی میں سفیر فواد شیر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی کا ایک اور کارنامہ, 9ویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت سر کر لی. 8000 میٹر سے زائد بلند 7 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. نائلہ کیانی کا کہنا تھا کہ مہم کے حوالے خوف زدہ لیکن مشن کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم تھی. نفرت, جھوٹ اور اشتعال انگیزی کسی بھی مہذب ملک میں ناقابل قبول. سابق برازیلین صدر بولسونارو کو اشتعال انگیزی پر مبنی سیاست مہنگی پڑ گئی. 2030 تک کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے. جھوٹ, نفرت اور اشتعال انگیزی ناقابل برداشت. سابق برازیلین صدر کے خلاف اعلیٰ عدالت کا فیصلہ مثال بن گیا. بولسونارو کو اشتعال انگیزی پر مبنی سیاست مہنگی پڑ گئی. 2030 تک کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. عدالت نے سابق صدر کو غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے ملک کے خلاف ابہام پیدا کرنے کا مرتکب قرار دیا. پروپیگنڈا کے لیے میڈیا کا غلط استعمال بھی ثابت ہوا. بولسونارو نے غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں جھوٹ در جھوٹ پھیلایا اور عوام میں اشتعال پیدا کیا. معاشرے میں تفریق ڈالنے اور ملک کو بدنام کرنے کے الزام پر سابق صدر کے الیکشن میں حصہ لینے پر 8 سال کے لیے پابندی لگائی گئی ہے. عید تعطیلات تو ختم ہو گئیں لیکن موج مستی کا سین آج بھی آن ہے. مختلف شہروں میں لوگوں نے چھٹی کا آخری دن کو یادگار بنانے کی ٹھان لی ہے. شہریوں نے دن کا آغاز تگڑے ناشتے سے کیا. کسی نے نان چنے پر ہاتھ صاف کیا تو کسی نے حلوہ پوری اور مکھن والی لسی کو انجوائے کیا. عید ختم, موج مستی جاری.
शहरियों ने छुट्टी का आखिरी रोज यादगार बनाने की ठान ली। फैसलाबाद में शहरियों ने सुबह का आगाज रिवायती खाबों से किया। नाश्ता हाउसेस पर फैमिलियों का रश रहा। जी बस बच्चों का था कि आज हम बाहर जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो बस इसलिए अब आए हैं। सियालकोट में भी लोगों ने दिन का आगाज तगड़े नाश्ते से किया। ईद के दिन घर वाले भी गोश्त खा के ना बहुत आवाजार हो चुके थे। उन्होंने बोला कि आज संडे है, हमने कोशिश करनी है कि अच्छा नाश्ता हमें कराया जाए। डिचकोट में शहरी नान चने और हलवा पूरी खाने पहुंचे। साथ मक्खन वाली लस्सी के भी मजे लिए। यहाँ का रोगनी नान बहुत खस्ता है, यहाँ के चने बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए हम यहाँ पर चने खाने के लिए आए हैं। हैदराबाद में खवातीन ने 3 दिन तक मेहमानों की खूब तवाज़ा की। अब बाहर से नाश्ते की डिमांड कर दी। माशाल्लाह ईद बहुत प्यारी गुजरी। लोग अजीजों को रिश्तेदार आए गए, घर वाले जाहिर सी बात 3 दिन तक किचन में लगे रहे। लेडीज थक गई जाहिर से, तो उनके लिए तो कुछ न कुछ ले जाना पड़ेगा ना। पेशावर और कोयटा में भी लोगों ने न सिर्फ फूड स्ट्रीट पर नाश्ता किया बल्कि पैक करवा कर घर वालों के लिए भी ले गए। लजीज नाश्ते से लुत्फ अंदोज होते शहरियों का कहना था कि छुट्टी के रोज बाहर आकर नाश्ता करना अच्छा लगता है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।